Hi, welcome back to Machine Unfiltered. Today we are revisiting the most talked about feud in the Desi hip hop scene, that is between Emiway versus Krishna. And to kick things off, I am starting with the track Chusamba. And we are very close to hitting 1K subscribers. And I think by the time this video drops, we would have reached that mark. So thank you so much for subscribing to my channel and show more love to my upcoming videos and continue to share my channel with your friends and family. And stay tuned for more updates from my channel because I am coming up with some spicy content and I'm trying to make my content even more interactive with you guys so that I can enjoy and make the best out of this channel by reacting and interacting with you guys the most. With that, let's get into today's video. After Emiway blew up in the DHH scene, he released a track called The Free Verse Feast, where he claimed that he is the #1 artist in the scene and he is the only one representing the country on a global level. And that didn't sit well with Krishna, who responded to Emiway with a song called Free Verse Feast Langar, directly dissing Emiway. What followed was a back and forth on Twitter, after which Emiway released a sneak diss on Krishna called The Seedha Takeover, and he took subtle shots at Krishna in that song. He also said that he's busy making money and he's not paying any attention to the hate that he's getting. In response to this, Krishna dropped a track called The Seedha Makeover, and after that we didn't hear anything from Emiway. As time went on, Krishna also had a beef with Mufar in which he took shots at Emiway too. Krishna also used to take a dig at Emiway's girlfriend on Twitter, and that sort of pushed Emiway to the edge. With each diss, his hype kept growing, especially among the Emiway haters, and people started to recognize Krishna for his writing and art. Meanwhile, Emiway was in a different zone. He was making lo-fi music and commercial tracks. The buzz that he used to get, it started to fade away and his views started declining. But with the release of his second album, Art Sal, Emiway needed some hype, and that's when he dropped the track Chusamba. Now, I know there's a lot to unpack in these tracks, but I will not go into the depths of it. I will just give you an overview of the beef. With that said, let's go to the first track of the beef, Chusamba. Shit, here we go again. Here we go again as well. Reflex got the beat, boy. क्या बोलते हैं छोटे सुधरे नहीं तुम अब तक छोटे come out to play हाथू संभाले इन्हें लगा हुआ बनता का रैप अप bitch I'm back जाके ढूंढो कोई बैकअप मुझे हराने ये गैंग लेके आ रही है बेचारे करे साउंड करूं शूट सीधा बैकअप इन्हें लगा हुआ बनता का रैप अप bitch I'm back जाके ढूंढो कोई बैकअप मुझे हराने ये गैंग लेके आ रही है बेचारे करे साउंड करूं शूट सीधा बैकअप असल में मसल में दूंगा मैं ठसल में बैठेला कसम में खारेला बस सब मैं कर दूंगा बस सब मैं झेलूंगा नहीं खिला दूंगा मुंह में पहले पेलूंगा नहीं सोच इनकी बचकाने इनकी बड़ी बड़ी बातें बड़ी शक्ल में तो जस्ता नहीं मुंबई के सड़कों पे पीएचडी किए ले बच के गुम बचकाने Did you really do PhD? स्वैग मेरा देसी है ये बार बार आ रहे लगता लंड मेरा टेस्टी है इनको भी मालूम मैं कैसा हूँ मारूंगा मैं गांड उसके बाद पूछो कैसी है ये सब साली छोकरी है वो भी एक टोकरी में खन्ना चुसारे लगा ना ये मन्ना नहीं कर पा रहे खतरे में नौकरी है इन्हें लगा हुआ बनता है रैप अप बिच Kalamkar's manager. जाके ढूंढो कोई बैकअप मुझे हराने ये गैंग लेके आ रही है बेचारे करे साउंड करूं शूट सीधा बैकअप इन्हें लगा हुआ बनता है रैप अप बिच I'm back जाके ढूंढो कोई बैकअप मुझे हराने ये गैंग लेके आ रही है बेचारे करे साउंड करूं शूट सीधा बैकअप But then Emiway got his gang as well. बेटा कंट्रोवर्सी इसलिए तो मेरा नाम बार बार रहता है इनके मुंह पे अपन को मालूम है अपन कहां पर है इसलिए तो भाई The guy in the back got overexcited and took off his shirt. अपने धूप ये सारे परछाई गांड में नहीं दम इसके भिड़ने को भाई लफड़ा था तेरे से दूसरे क्यों आए क्योंकि ये लिख नहीं पा रहा था भाई तो भेजा चिनाल को डॉलर जला देगा भाई तेरा पाब्लो मुंह फाड़ने खुला हराया था बुल्ला चुसाया था उसका जवाब दो हलक ने हलक तक दिया था फिर भी चिनाल ने जवाब नहीं दिया था मैं तो कभी डरा नहीं बीफ से लौड़े डरा देंगे फाड़ूंगा बीच से 15 साल गांड मराया व्यूज पे आया क्या जिस गाने में बंटा का लंच जवाया वो गाना मचाया ना मचाएंगे ये फटके भी खाएंगे लौड़े खुलफा कराएंगे धारा में अंटोपेल रास्ते पे घूमे ले डरेंगे मुंबई का तू बेटा मुंह में ले आ रहे ले जा रहे ले मुंबई की बोली छिड़ा रहे ले तेको सुधारेंगे कसम से बच्ची में समंदर शाक तू गट्टर का मच्छी पूछ तेरे बाप से बोलेगा सच सफर शुरू पीटी दो बंद But then he jumped into a pool saying it's Samundar. नहीं झेलेगा तीखी जुबान हाइप चाहिए शमिया को खोल तेरी गांड पिंकी है पसंद पर लेकिन वो रान एमी सुन ये अपना देश में बिग बॉस चलता है बस कर बे केले पाओ खुद तो आना भिड़ने हो कहा नल्ले पाओ को भेजने लग केले पाओ हिप हॉप की राखी
ये ट्रेलर है, बहुत कुछ है बाकी। गिरफ्तार बता कौन है सरकार, कैसा में मारा गांड फटी थी नचार। बीमार मेरा फ्लो बहुत करे इंतजार, छमिया आज नाचेगी नचाएंगे बार। तुम बजाएंगे लौड़े हम बजाएंगे चार, चुतियाओं के लौड़े अपन सीट पे बिहार। तेरे ठुमके में नाचेगी यूपी बिहार, जरा झुमका तो पहन दूंगा पीछे से मुंह से बाहर। दूंगा मैं गाड़ खड्डा जो खोदा था, याद रहेगा बंटाई ने चोदा था। बुरा लगा तो पूरा ले लौड़े मारूंगा खोटे। कौन तुला सौते आ रहा क्यों मेरे पास गोटे के कौटे। चुप बनाओटे कर पटेली बन, बस हो गया और कितना चूसेगा लन। हिप हॉप में बार बार क्यों फैला रहा गन, बिना वजह डिस कर रहे मिठा मत बन। चल मालूम है ना लौड़े, तेरा बाप सिखा देगा तेरे को ऐसा बोलने होती रही। तेरा बाप सिखाया था क्या? When I listened to Jusamba in 2025, it honestly sounds like a fun track. It has a high repeat value, and if this was just a regular MUA solo track, I'd say it's a banger. The flow is solid and it has that classic MUA vibe. I also really like the music video. MUA is just chilling with his friends and the visuals give the impression that it's all so easy for him, like he's casually dissing someone while being on a vacation. That itself is a flex. But was it a good diss track? I'd say not really the best of MUA. I remember people back then saying that it's vulgar and it lacked intelligent bars, and yes, I get that. Using abusive language in hip hop is common, but what sets a good diss apart is how you put the insults or abuse in an intelligent way without making it look cheap or vulgar. I think a lot of people were judging this track based on Krishna's standard. They were expecting MUA to write like Krishna, layered punches and clever wordplay, but that isn't MUA. But MUA has his own style, and if you view it from his lane, this track still works. For sure, it has its flaws, but even in 2025, it still feels like a fun track. Okay, so moving on from Dr. MUA Buntai, who's apparently done his PhD, to Lil Bunty from Kia Dollar Sign. Little Bunty, Daddy's home. Papa. Yeah, you ready? Real talk, मैं हूँ realist in the scene. सुना बंटी की चली तो फिर ये है केरोसिन। ये है real rap, pull your fucking hair back। 2.5 साल पहले मैंने ली थी इसकी bare back। बना मैं बड़ा He looks like an NPC character from GTA Vice City because he has these mechanical movements that he's doing throughout the video. ये है रियल रैप, पुल योर फकिंग हेयर बैक। 2.5 साल पहले मैंने ली थी इसकी बेयर बैक। बना मैं बड़ा तो ये मेरी कला से जला, क्यों जब करा था मना किया था भला, अब तो मरा तू। कलम चला तो परंपरा में हरा दूं, फेमी वे करे स्विंग बोथ वेज जैसे तराजू। कृष्णा था चुप मगर हार नहीं माने, इन्होंने बहुत ट्राई करा मार नहीं पा रहे। तू है शुगर कर ले शुगर, तुम तो मार नहीं खा रहे। बने ये कैसे पावलो जब इसको पार नहीं आ रहे। करा था मैंने खात्मा, अब मारू इसकी आत्मा। चीप बाहर रहती इसकी आदत है चाटना। हुई इसकी हाइप टेक तो आया मेरे पास ना, आके मुझे काट दी और मैं ना कोई महात्मा। That's very true. MUA dropped Jusamba because his hype and the views had declined and he needed more hype for his upcoming album, that is 8 Saal. ना हुई इसकी हाइप टेक तो आया मेरे पास ना, आके मुझे काट दी और मैं ना कोई महात्मा। जा बेटे अब फैला अपने मन को, बड़ा होगा नहीं फ्लेक्स करके धन को। छोटे कम आउट टू प्ले, हर रात बोता होगा अपने लन को। शॉट देने लगा हो गए सारे शॉट फेल, कराए से डाउन पहले राउंड में ही बहुत तेज। इसमें सिर्फ लौड़े ये लौड़े वो, बस लौड़े की कहानी अब बताए ने कॉकटेल्स। Cocktails, yeah, very true. बहुत तेज, इसमें सिर्फ लौड़े ये लौड़े वो, बस लौड़े की कहानी अब बताए ने कॉकटेल्स। बीफ करना है मम्मी से पूछ, चला डालूंगा तुझे जैसे यहाँ गर्मी में धूप। लेता मैं इनकी जब बोलता है पिंकी, तो मुझे याद आती इसकी बंदी की। ओ ले बंटी है। I don't support this. I really don't. सब जानते हैं बंटी है बैकअप, जब लिटाऊं तुझे नीचे मिलूं मैं तेरी पीछे से, is the only time I need backup। मैं मेरे पंटर मारते हैं हंटर, सुबह शाम लेते तेरी जमकर। पीठ पर है फ्लैम बॉय खड़े नहीं रहने का, चल छोटे जमकर, चल छोटे जमकर। आके मेरे लंड पर बंद कर, छोटे नाटक कम कर। लूंगा तेरी तो होगा तू आउट ऑफ संपर्क। हल्की टोन में मेरी ही लाइनें बोल के इसे लगा ये कोल्ड है, नकलची होते बंदर। मैं पड़े जो करे आके या रंबल, सिल्वर बैक में रैप वाले या जंगल। हिलाता रहे बेटा ओढ़ के तू कंबल, स्किन लाइट माइंड से मैं टाकूं चंबल। रैप पे आता तो पढ़ते रैप पढ़े तुझे, हाँ नो फ्लैश जब अटैक करे मुझे, हाँ 8 साल हो गए रैप करे तुझे, अभी भी कोई मानता नहीं रैप करे तुझे, हाँ 8 साल बोल के 9 साल दिखा रहे हैं।
सुनेगा अब तेरा ये टेस्ट तो लगेगा डेस्परेट फॉर डॉलर का टिक ये गधे की झूठ बोल रहा अब उन्हें धूप तो कृष्णा फिर लाया या सोलर इक्लिप्स अब बना तू पहाड़ यहाँ घाटी है दोस्त लगता तू धरती पे भारी है बोझ ये अनपढ़ गवार रांझनिया जन्नाल से आगे ना इनकी तो बढ़ती Hey, that's wrong. He's done his PhD. You can't call him unpad. घाव तू फिलहाल ले ले बैंडेज बैक स्टेज इफ आई गेट सन माइक जैक्सन रैम्पेज तू काई होगी छोटे लेंगे तेरी चैन से तेरा ओनली फैन पेज होगा ओनली फैंस पे Femi whip pussy whip that's a fact on your bitch probably fuck you with a strap on all I need is one verse to put you in a hearse and I don't even have to put my cap on कलमकार को बना बैठा मैं डेथ रो इस बारी इसकी मौत टल ना पाए जैसे जेथरो ending the silence with violence of violence now watch a dead rapper get fucked no necro कुल्फा क्या करेगी कुल्फी है खुद बंटी तो लगता है बुद्धि से दुष्ट ऑटोमेटिक था ब्रश ऑटोमेटिक अब टांगे जब दिखता है डॉलर तो खुलती है खुद देखो ये छपरी है सोच इसकी नाली में इसको लगा ये ब्रूटल है गाली से मेरा गाना नहीं चला था तेरे नाम से चला मेरा गाना तेरी बदनामी से ये तो टीजर है छोटे Wow, this track had some really interesting writing. It's not a direct diss like Markasam, but Krishna managed to maintain the atmosphere that MUA had set. The poolside, the relaxed energy, all of it. I absolutely love how Krishna flipped the Pablo Escobar bar. Some of the lines hit on a personal level, like the time that he talks about MUA's girlfriend or when he says, "Dis karna hai, mummy se pooch." We've seen this side of Krishna, especially in his beef with Mufar, and when he gets personal, he goes all in. But I think it just makes the beef uglier. After the diss dropped, all eyes were on MUA. MUA was on his back foot, and the conversations everywhere was about how Krishna kept it smart and clever, while MUA's diss was purely vulgar. At that point, MUA had to work hard to earn back the respect that he had lost. So with that, we move on to KRL Sign. लहरों से कर रहे थे बातें, अब होगी सुनामी से। नाम है बंटाएगा छोटे, तभी तो ये चल रहे मेरे बदनामी से। बेटा पापा आ गया वापस। Daddy's home. यस बेटा आ गया मैं वापस ना, थोड़ा बाहर गया था काम से। आवाज कम करो बेटा जरा, पप्पा कुछ बोलेंगे, अभी पप्पा की बारी है ना। उधर बैठो चुपचाप। फैन से बुलाता है तू फक के मिवे, मैंने फेस्ट हुआ किया तुझे फक के मिवे। आप मिलने को तुझे बेटा दिन रात फैंस तेरे बोलेंगे अब बस से मिवे। फैन से बुलाता है तू फक के मिवे, मैंने फेस्ट हुआ किया तुझे फक के मिवे। आप मिलने को तुझे बेटा दिन रात फैंस तेरे बोलेंगे अब बस से मिवे। तू और तेरा गैंग ठसने लगा है, कोल्ड वाइब बुला रहा पर अभी हंसने लगा है। मैं वो वाला दिन पूरा करा तेरा ड्रीम जब से तू चिराग मेरा घसने लगा है। करा मैंने काम इतने साल बिना नींद ले दिया तुझे डेस पूरा किया तेरा ड्रीम बना नहीं मैं इस गाने में खड़वा। कैसे की एक्टिंग करेला ये भड़वा, गुड़वा लंड पकड़ के लटके जा रहा लौड़े के काफी समय से तू बचते जा रहा, बच के जाएगा कैसे बदला मस्ते भाईजान। सांपू में हड्डियां तोड़ेगा तेरा पाइथन, माइक ऑन बोल मदर चोट साले है कौन, कलाब किया डिस किया तभी बना पहचान। बेजान तेरे गाने मेरे बिना, ये गाने की भी जरूरत नहीं थी पहले से हुए ना। इस गेम में हम बैठे। It's funny how he's using Krishna's song as his ad-libs. बेजान तेरे गाने मेरे बिना, ये गाने की भी जरूरत नहीं थी पहले से हुए ना। इस गेम में हम बैठे ले बाप, हाँ ब्रेकफास्ट और लंच खत्म खाऊंगा मैं डिनर। ब्रेकफास्ट मतलब छोटे पहला बीफ कम है, लंच खत्म किया दूसरे में भी जी नो लॉस। डिनर करूंगा तो डिनर नहीं है साले, तू डेजर्ट है मीठे पहले खाऊंगा मैं स्वीट। So breakfast was Raftar's beef, lunch was Divine's beef, and after breakfast and lunch it is your dinner time. But he's saying that I won't have dinner because you're a dessert, you're sweet and meeta. लंच खत्म किया दूसरे में भी जी नो लॉस। डिनर करूंगा तो डिनर नहीं है साले, तू डेजर्ट है मीठे पहले खाऊंगा मैं स्वीट। गाली देता क्योंकि बनता है स्ट्रीट, बेटा मुंबई के सड़कों में that's how it is. Say my name, say my name. I've been in Mumbai, but I don't think this is how people of Mumbai talk. मैं स्वीट गाली देता क्योंकि बनता है स्ट्रीट, बेटा मुंबई के सड़कों में that's how it is. Say my name, say my name. ले गांड में डालते रे लाया बनता है ने डिश। फैन से बुलाता है तू फक के मिवे, मैंने फेस्ट हुआ किया तुझे फक के मिवे। आप मिलने को तुझे बेटा दिन रात फैंस तेरे बोलेंगे अब बस से मिवे। फैन से बुलाता है तू फक के मिवे, मैंने फेस्ट हुआ किया तुझे फक के मिवे। आप मिलने को तुझे बेटा दिन रात फैंस तेरे बोलेंगे अब बस से मिवे। तू और तेरा गैंग ठसने लगा है, कोल्ड वाइब बुला रहा पर अभी हंसने लगा है। मैं वो वाला दिन पूरा करा तेरा ड्रीम जब से तू चिराग मेरा घसने लगा है। आइंदा से जाना नहीं बंदी पे तू, ये बात भूल मत निकलेला किसी बंदी से तू। सही बोला मेरे बंदी के बारे में, काफी ज्यादा पिंक तेरी मम्मी की। पिंकी बहुत साड़ है, भूल गया तेरा बंटा ही डैड है। याद रख बेटा फैमिली पे गया तो हरामी ये छोकरा बंदा बहुत बैड है। कोई वाइब बेटी ठंडी में तू सबको मालूम है।
कितना टाइम लगेगा बे बुरा बोलने में, खराब करूँ इज्जत तेरी मम्मी की क्यों? गलती माँ की नहीं झाटू औलाद की है, दिल्ली का नाम तेरे जैसे लोगों ने बर्बाद किया। राखी जरा गौर तो फरमा, कैसी बातें कर रही आर्टिस्ट तेरी तू खुद भी जानती है। लेकिन नहीं ब्रा यही सिखाएगा, दूसरों के बंदियों के बारे में बुलवाएगा, अपने आर्टिस्ट से बुरी बुरी चीजें मारता है बीवी को, तू क्या सिखाएगा? लिमिट में रहे वरना मुंह खुल जाएगा। Yeah, so there were a lot of news about Raftaar and his wife having issues of domestic violence, that Raftaar used to hit her and stuff. And now he's remarried, and I think he is quite happy in his new marriage. अपने आर्टिस्ट से बुरी बुरी चीजें मारता है बीवी को, तू क्या सिखाएगा? लिमिट में रहे वरना मुंह खुल जाएगा। गजनी है शॉर्ट बेटा सब भूल जाएगा, दूंगा गालियां भागेगा जैसे मालिया में, जैसे इंडिया भिड़ने फिर से नहीं आएगा। छोटे कम आउट टू प्ले, हर रात को बोलता हूँ मैं मेरे लंड को, छोटे कौन है सबको मालूम, राह मतलब मेरा लंड वो खड़ा बेटा सीन में। So if Raftaar is his, so does Raftaar go on behalf of MEV for all of his sexual activities? I'm quite confused. मैं मेरे लंड को, छोटे कौन है सबको मालूम, राह मतलब मेरा लंड वो खड़ा बेटा सीन में मैं चौड़े से, तू कारीगर माँ कसम खड्डा को दे फावड़े से, लौड़े ये लौड़े वो क्या करूँ शक्ल तेरी मिलती है लौड़े से, सारे फैक्ट से अटैक करूँ तुझे, बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रैपर बुलाते हैं मुझे, 15 साल से तू कर रहा है काम, जब से डिस किया मुझे तब से जानते हैं तुझे, कुर्बानी तेरी बांटूंगा गोश्त तेरी मीठे है मेरे बहुत हरामी है दोस्त, सीधा शॉट तुझे देख के रांड छिनाल, छमिया से आगे मेरी बढ़ती नहीं सोच, रैप गॉड हूँ मैं ही रैप डेविल, चट्टानी पत्थर तू झाड़ भर का पेबल, तू कर सकता कॉपी मेरा फ्लो मेरा स्टाइल मेरा वीडियो का वाइब नॉर्मल लेवल, मालिक करता है मेरा देखभाल, बे उखाड़ भी नहीं पाएगा तू मेरा एक बाल, अगर चलता रहेगा ऐसा चाल, सही बात बोला स्टेज पे तू खत्म है ये साल इतना। So in one of the concerts of Krishna had said that he's gonna finish MUA in that year. So MUA is giving a rebuttal for that, and he's saying that if this is how Krishna is going to be dropping his songs, and if this is how uski chaal rehne wali hai, so this year it is Krishna who's gonna be finished. पाएगा तो मेरा एक बाल, अगर चलता रहेगा ऐसा चाल, सही बात बोला स्टेज पे तू खत्म है ये साल, इतना सॉफ्ट कौन बनाता बेटा डेज भारी डेज बनाने का, तो लो पप्पा से टिप्स, ओनली फैंस पे मिलेंगे तेरे ठुकाए के क्लिप्स, सिर्फ 7.5 मिनट का है 16 क्लिप्स, कौन रोकेगा रोशनी को और 15 साल मेरे तक पहुंचने को, इतना बचकाना गाना कौन डालता है और थोड़ा टाइम लेता सोचने को, हराएगा मुझे तू ये सिर्फ कहावत है पब्लिक को माल। MUA said that a solar eclipse only lasts for 7.5 minutes. MUA is your forever. गाना कौन डालता है और थोड़ा टाइम लेता सोचने को, हराएगा मुझे तू ये सिर्फ कहावत है पब्लिक को मालूम कि बनता है फुल आफत है, आठ के जगह पे नहू दिखाया बे, एक्स्ट्रा उंगली करने की तुझे बेटा आदत है, बेड़ा बाप तेरा वहाँ पे तुम यहाँ पर हो, लाइन चोरी करते हो तुम कैसे रैपर हो, पिंकी बोलती है रियल इन द सीन, मुझे नहीं लगता तुम असली रैपर हो, इसके बाद चैन से तुम सोना पाओ, ले झंडे रे तू और बनता है लेजेंड, रास्ता नहीं मेरे आगे मैं हूँ तेरा डेड एंड, जन्नती सोच इसलिए लाइफ मेरा हेवन, CR का मारे मैं CR7 बॉल इन नहीं मार, मेसी है लाइफ तेरी जिंदगी है बेकार, ऑनेस्टली बोलता हूँ ऑनेस्टी नहीं है तू गाने में तेरे, हाँ बंदा तू बेईमान, मैं मेरे पंटर आज भी स्टूडियो में दिन रात काम करे जमकर, ढापे मेरा फ्लो के तना कल से बंदर, सिल्वर बैक टू ए बैक बनता है लायन ऑफ द जंगल, शुगर करूँ हम मार नहीं खरे बेटा सामने तू आ तेरी गांड नहीं मारे, मेरे पंटर असल में लगा देंगे लंगर, लफड़े की बात मत कर 34 के अंकल बना में। So that was for the free verse feast Langar that Krishna had dropped earlier. तो तेरी गांड नहीं मारे मेरे पंटर, असल में लगा देंगे लंगर, लफड़े की बात मत कर 34 के अंकल बना मैं आमिर खान, सुने तक से गाने मेरे दंगल, कुश्ती है सोच के मैं गया और संपर, बोल बचन शानपति शमे जरा कम कर, राखी नाचारी और तू उसके लंड पर पंचर, देख मेरा मंजर सूरज वंटा तू आसपास भटक रेला मंगल और चांद, फिर से मरवाएगी हैरान ऑटोमेटिक खुलेगा टांग, बीच में से निकलेगा नाम एनाकोंडा रैप गुंडा बैड मुंडा, चूस लोड़ा जैसे बेबी है आलू का पकोड़ा, तू है पुसियों की रानी में करोड़ों का राजा, बिना डिस्क किए पोक किए गाना जरा डाल, बिना प्रमोशन यूट्यूब पे वीडियो निकाल, फिर देखता हूँ हाइप तेरा कभी नहीं डेड होगा हाइप मेरा, सब ऑर्गेनिक डोंट पैनिक इंडिपेंडेंट नंबर 1 रैपर इस देश का, हकीकत खाली हवा भरेला तू पैकेट है लेस का, अपन है रुपया तो डॉलर विदेश का, और ट्राई बेटा मैं नहीं तेरी गैंग करी लेकिन फिर भी हरा नहीं पारे, अंडरग्राउंड दफनाया डॉलर को, खर्चा देने पाब्लो इसको बाहर निकाले, डिवाइन ने मिलाया So that was a good rebuttal for the Pablo Escobar bar. के बाद तुझे सपोर्ट किया मैं धोखेबाज, तूने पूछा था भाई साथ गाना बनाते, लोग जानने लगे तुझे उसके बाद, काफी मेहनत लगाया मैं बिजी था फिर भी गाना बनाया मैं इसके साथ, आज बोलती है पिंकी मैं रैपर नहीं बे पाब्लो हूँ गॉड ओनली गोल्डन बॉस, तूने डिस किया क्योंकि मैं बोला इंडिया को कर रहा मैं अकेला रिप्रेजेंट, इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ काम, कोई शक तेरी तरह नहीं हूँ मैं डिपेंड, तू कर प्रिटेंड मैं जानता हूँ रफ्तार से हुआ नहीं लेने आया तू रिवेंज, अनडिफीटेड रहूंगा जिंदगी भर खबीब मैकग्रेगर तू तेरा एंड, अब तू बोलेगा ब्रा भैया ने बंटाई को शुरुआत में किया सपोर्ट, फिर काय को बंटाई ने रफ्तार को डिस किया, असलियत जान मेरे दोस्त, जब खुलेआम बोला मैं पैसा कमा रहा नहीं दिल में लगा मेरे चोट, मैं साइन नहीं हुआ तो मार्केट में वैल्यू गिराने का प्लान था ये दोस्त, जान ले दुबई में बैठ के So I feel like this is quite
good because it has a lot of facts. So here he's saying that the reason that he had a fall off with Raftaar was because of the things that he said in his interview, and that sort of demeaned MUA's image in the market. So a lot of people who even would have wanted to sign MUA would offer him a value that's not matching. मैं साइन नहीं हुआ तो मार्केट में वैल्यू गिराने का प्लान था ये दोस्त, जान ले। दुबई में बैठ के कर रहा था बकचोदी, लोकेशन एंटोफिल करते रहा मैप ऑन, पुसी के अंदर का टैम्पॉन उखाड़ भी नहीं पाएगा इवन इफ यू पुट अ कैप ऑन। कुछ बड़े लोग के जैसा बात कर बे बचकाने छमिया टोपी पहनने का तो डेंजर हो जाएगा बे, खेले पाओ फेयर एंड लवली। तू क्या टोपी पहनेंगे, देखो तो लोग टोपा पहना दिए ले लला। सी माय नेम या ले जशन मना, आज से तू $1 साइन नहीं, आज से तू क्या लौड़ा साइन, मालूम है ना। तू तेरी गैंग सब एक साथ आ जाओ लाला, फिर भी बनता का कुछ उखाड़ नहीं पाओगे क्या लौड़ा साइन। मेरे अंडवे के शक्ल के टीजर है ये, लेकिन तेरे पिक्चर मैं ही बनाऊंगा। फिलहाल खत्म करते करते इसको थोड़े लाइन और देना पसंद करूंगा। सुनो, तू बेसमेंट है अपन है रूफटॉप, खन्ना से लेता हर रात को तू भूप जॉब, कलमकार को तू बना डाला बेटा डेथ रो, खरीद लूंगा पूरा लेबल बेटा मैं स्नूप डॉग। फेयर एंड लवली है तू, ये चिकने 34 की लगती पर कौली है तू, कलमकार घराने की नौरी है तू, फिर भी बंटा के केले के लिए हौरी है तू। गाय का गोट गला तो फाड़ नहीं बनेगा पॉप, मिलेगा शॉट रगड़ लेगा नहीं मिलेगा स्पॉट। देख के हंसा मैं बहुत, ये That was a good mimicry of Raftaar and it was so on point. बोर्ड सब हो गए कॉट, बोले ये सजा है मौत, अपना दिल बड़ा देख तेरी सजा है मौत। Ooh, so he's saying that he's got such a big heart that उसने उन लोगों की मौत भी सजाई है। बोर्ड सब हो गए कॉट, बोले ये सजा है मौत, अपना दिल बड़ा देख तेरी सजा है मौत। लाइमलाइट के आसपास भटक रहा है, रेड अलर्ट बनता है तेरे लिए खतरा है, प्राइमरी किड्स ये चड्डी में आ रहे। नंदू तेरा नाड़ा लटक रहा है, बीफ करना है मम्मी से पूछ, खा जाऊंगा करियर बचेगा नहीं कुछ, अभी भी भूखा। घर गाड़ी हीरा मेरी मम्मी है खुश, तुझे पैदा करके माँ तेरी पछतारी खुद। सो सैड रफ्तारी खुद गायब है, तू कौन सा नायब है, तेरे भैया का रेवोल्यूशन अब तक नहीं आया पर बंटाई ने लाया बे। मैं मेरे फैंस जाने मैं हूँ रेवोल्यूशन, टेस्ट करना चाह रहे अंकल आपस ले लो ट्यूशन, गलत जगह गुस्सा भी वक्त ले ले यू टर्न, करियर तेरा गिरता देखूंगा मैं जैसे न्यूटन, होगा करियर तबाह ले आ पूरी सभा। मेरे गाने में मेटाफोर रेफरेंस और इमोशन वाइब है, जिंदगी हाथ ही किया सवाई में, म्यूजिक के जरिए से दिया दवाई में, पब्लिक को मालूम है करता तबाही में, दिल्ली का गुड़वा तू मुंबई का भाई में, चाहिए बारसी से जैसे शुग नाइट मिड नाइट पेल डाला समया चल गुड नाइट। बस हो गया भाई, बस हो गया। बस नाके पे रेल फाटे पे और पिंकी तू मेरे फैन से बुलाता है तू फक के वे, मैनिफेस्ट हुआ किया तुझे फक के वे, आप मिलने को तुझे बेटा दिन रात फैंस तेरे बोलेंगे अब बस से वे, फैन से बुलाता है तू फक के वे, मैनिफेस्ट हुआ किया तुझे फक के वे, आप मिलने को तुझे बेटा दिन रात फैंस तेरे बोलेंगे अब बस से वे। तू और तेरा गैंग ठसने लगा है, कोल्ड वाइब बुला रहा पर अभी हंसने लगा है, मैं वो वाला दिन पूरा करा तेरा ड्रीम जब से तू चिराग मेरा घसने लगा है, घसते रहे पिंकी भड़वी। Whoa, what a diss. MUA came right back at Krishna with this one. His second diss always hits hard. He never really disappoints. This is hands down my favorite diss from the entire beef. There was a rebuttal for almost every bar, and the way that he used Krishna's own song as ad-libs, that was brilliant. His imitation of Raftaar was also spot on. The writing felt fresh and MUA had never crafted such a diss before. Listening to this just made the whole beef even more entertaining. His comebacks to the Pablo Escobar in the Solar Eclipse were really clever. And that infamous Karare Khao ad reference, that's hilarious. The diss had a strong entertainment factor, but at the same time, it felt more serious. Like it's not just for show anymore. Like it's getting real. However, the shots being taken at the family members, it just makes these things uglier. With that, we move on to the next song of Krishna, that is Machayenge 4. लिल बंटी तुम्हारे अब्बू आ गए फिर। पापा आप फिर आ गए? मुबारक हो मिली है मौत, तू तो सिली है बहुत, अब पुसी तू गीली है बहुत। बंटी को लगी है भूख, नाश्ते में मिली थी हार, अब मिलेगा डिनर में एल।
इसके मुंह से टपकेगी लार रैप का दीपक कलाल क्यों आके मरा रहा हर बार मैं खारा करारे तू कोटों से करा गरारे अब ये लेकर आ रहा जवाब कोट डाली कबर तेरी निकालो अब काला कोट वर्तमान में तो सब जानते मैं ज्यादा डोप अभी नंदू को सड़ेगा ये बम्बू इस मादा चोट पे गिराऊं बम लगे वाला गोट लूड़ान हर बास बोले भाई साहब अर्जुन वाला तीर तेरे कांड में था 28 साल सब जानते हैं बंटी है पुसी ऑल यू वांट इज अ लोड़ा ऐसे शौक है मलाई का हाइप लेने आ रहा पर गांड दे रहा बार बार 4 फुट का लिली पुट ये करेगा क्या मार धाड़ रिग्रेट करे तेरे फोर फादर्स अब ढूंढने पे मिलेंगे या बाप तेरे 4 हिस्से तो पता नहीं किससे अलादीन के अनपढ़ ख्वाहिश होती पूरी जिन से तेरी जैस्मिन करती है राइड हाँ घुटने किसे है उसने उड़ती कालीन पे बंदी के बारे कुछ बोलो ना पंजाब में फैली थी जैसे वो कोरोना पर तू भी कोई कम नहीं है छोटे हाँ तू भी तो करता है स्वॉलो ना हेलो साइबर पुलिस तू लौड़े का रैपर हम चलते हैं चौड़े में करे एंड टॉप हिल की ये बातें पर रहता है खुद नबी मुंबई के कोने में Ooh, this must have really hurt MUA because he takes a lot of pride when he says that he is from Antop Hill. टैक्स नो GST ये जानते हम बाप नो PSG मुंबई के सड़कों पे PhD मतलब pretty huge dick in your BSc मैंने मानी कभी हार नहीं तेरे 17 मिली सब्स फिर भी कुछ लड़नी उखाड़ी 6 महीने से हो रहा फ्लॉपी बिना डिस्क के इसके हो रहे 10 मिली पार नहीं सब छीलू तेरा कह ले तू चील मुझे किसी भी नजर से लगता नहीं रियल मुझे म्यूजिक करे हील मुझे चल झुक बेटा आ जाते तू फील तुझे हमारे सांप हो गए फाइट एंड पाइथन सनी लिसन में अली विद नो फाइटिंग लाइसेंस चाहिए पंच लाइंस तो मैं माइक पे टाइसन ये भागे करे डैश डालू लाइफ पे हाइफन तू छोटा सा छोटू यकीन कर 4 फुटिया तू गुड़िया पकड़ के अब नींद कर यदि तू लटके रहे मेरे इन टट्टों पे पैर तेरे फिर भी नहीं पहुंच रहे जमीन पर मेरे पास एक सॉलिड सवाल बोल कहाँ है तेरी नॉलेज गवार गानों में करता सिर्फ लौड़े की बात ये नारनिया नहीं आजा क्लोजेट से बाहर पहले हुआ कॉकी और फिर हुआ फ्लॉपी कृष्णा को नहीं जानता था नाउ यू नो ऑफ मी तेरे डिस्क का बेस्ट पार्ट जब किया तूने मेरे और रफ्तार वाला ड्रिल फ्लो कॉपी सामना तुम करोगे तो सामने ही मरोगे मेरे सब यहाँ कश्मीर का मैं थरोब्रेड मैंने झाड़ा अपना शीशी में लंटो पैदा हुआ बंटी बेटा तुम सरोगेट ये रैपर अब हंसने लगा है जब से दिमाग में तेरे वो बसने लगा है सदमा है सत्य से दिख नहीं रहा सच क्योंकि बिना कांच वाला इसको चश्मा लगा है लगती तू मियां खलीफा चाहिए है किन्नी तारीफा I don't need a ticket or visa just to go and kick it like FIFA whole family holding flowers तेरे golden bars को दे दूं golden shower अब बढ़िया सा मिलेगा तुझे short in motherfucker I ain't talking about no golden hour तू कोठे में बैठा मैं बैठा हूँ कोठी में लाइनें क्यों मार रहा है अभी भी चौथी के तेरा नाम और लोगो भी कॉपी है सब देखे मैंने जब था मैं वो टोकरी में ये रैपर नहीं टिकटॉक की छोकरी है बिस्तर में करता ये नौकरी है यू 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 चल बोजड़ी के वो करना चाहता ग्राइंड तो ले रहा उसकी मस्ती में बंटी आई यू फाइन चिल्ला रहा जैसे गश्ती है $% साइन अब बंटी बहुत फ्रस्टी है गेटिंग फ्रॉम बिहाइंड सुना दे रहा तू सस्ती में करना चाहता ग्राइंड तो ले रहा उसकी मस्ती में बंटी आई यू फाइन चिल्ला रहा जैसे गश्ती है $% साइन अब बंटी बहुत फ्रस्टी है गेटिंग फ्रॉम बिहाइंड सुना दे रहा तू सस्ती में एक मिनट स्वालोना का फोन आ रहा है ब्रो ये राउंड 2 नाउ बाउंड टू गेट एट यू सांप वाली मेडूसा ये बन रखी स्टैचू मुझसे क्यों फिर रहा क्यों बंटी है चिड़ा रुपया है गिर रहा बड़ी डॉलर की वैल्यू ली जगह में ना आया जगह मांग के किया तुझे कॉर्नर फंसाया तुझे जान के लोड़े का खबीब डिसलॉयल टू स्पीड साल लगता है मुझे तू आया है दगास्तान से 5G जमाना तू 3G पैक पे दिया मेकओवर मैंने ली थी बैग से इसे समझ नहीं आ रहा क्यों लटक रहा है नाड़ा तेरी बेच के लिए शी वांट्स इजी एक्सेस देख कैसे लगता है खर्चों पे टैक्स तेरे लेवल वाले तो सारे हैं परसों से वैक शॉप नहीं करने का बच्चों से बहस नहीं तो गांड में घुसता जैसे कच्छों के टैग डिवाइन ने शो पे मिलाया था ग्रुप ही तू बैक स्टेज आया था I feel like MUA did a better mimicry of Raftaar and Krishna. वो शो के लाइनअप पे प्रभ में डिवाइन थे तू तो सिर्फ फोटो खिंचाया था ना लेबल ना मैनेजमेंट व्यंजन था वायरल में कर रहा था शोज इंडिपेंडेंट तू आर्टिस्ट अलाउड पे साइन था पहली बार मैंने मिलाए थे सावन के लोग मुंबई से दिल्ली तक गाना वो मेरा था पहले से बातें बदलती नहीं कहने से बोला को लैब हम करते तू डाले फिर शर्ते की गाना है तेरे ही चैनल से पूरा नहीं माना दिया था गाना बदले में कुछ भी मांगा एक बार नहीं 4 साल तूने कमाया उस गाने से किया है तूने मुझ पे कोई एहसान नहीं ये ले अब फैक्स ले तू बहुत करे कैप अपने टैक्स पे मैंने क्यों किया डिस I'm the only one doing it right now बोल के थप्पा लगा रहा था तू रैप पे कमर में सुलाऊं लाइक गुड नाइट ग्रैंडसन मेक अ किडनैप I don't care for ransom सफेद होगी शक्ल नो मैरिलिन मैनसन अब फाइनली शाहरुख बने फेयर एंड हैंडसम बंटी बधाई हो मैंने इम्प्रूव करवाई है तेरी लिखाई को आधी लाइंस तो वो तेरी भी नहीं है किसने लिखाई है तेरी पंच लाइंस वो Ooh. So this is where Krishna put the allegations of ghostwriting on MUA, and I think this must have also hurt him a lot.
तेरी लिखाई को आधी लाइंस तो वो तेरी भी नहीं है, किसने लिखाई है तेरी पंच लाइंस वो? माय गॉश ओ माय गॉश, बंटी तू कैसा है राइवल, इसके लेवल का बेस्ट रैपर रखता है झांट पर इसको और मानता है मुझको वो आइडल। बेइज्जती कैसे तू सहती है रोज, मिलेगी चूत अपनी पैंटी में खोज, रूप नका तू नाच कटवाई है नाक पर, मैं क्यों दूं इसकी फैमिली को दोष? सुना तेरी नीले बाल वाली सहेली भी तुझे हर रात पहेलियां सुनाती है, मिंटू हर फोटो में दांत क्यों दिखाती है, लगता है बंटी का तू ही चबाती है। इस पे तो लगा मैं मजबूत, आदमियों के हमाम में मत घुस, बंटी का हजाम है अद्भुत, झांझ जैसे बाल पूरी आवाम में हंसमुख, तेरा करियर बनाया रफ्तार ने, हाँ जाके अब चूम उसके तलवे, तू नरम एंड वीक, थोड़ा शर्म तो सीख, जैसे यार तेरे पहनते फूल में भी कपड़े, गाने में केले। So in the first video we saw that his friends were wearing clothes even in the swimming pool. So yeah. केले पकेला खाओ नजदीकी तालुका तेरे बनाना से, ये दिल्ली की सल्तनत में ही हूँ अल्तमश, तू तो जन्नानी जनाना में। Cause I've been thinking about rap sounding hip about। कांटू अंग्रेजी नहीं आती तो बेइज्जती कराती, यहाँ असली में करती तू रैप नहीं, तेरी एल्बम थी फ्लॉप उससे ज्यादा तो बहुत ही बन रखी हाइप इस कैप की, स्वीडिश का खाएगी भड़वी ये खुद ही मिठाई, मुंबई की लौंडिया बन रही है भाई, बिलाल की कर्रा में टाइम से लाल में जीतू ये जंग जैसे 26 जुलाई, लेने की शौकीन अवाम, फक फेमी वे बोलो मॉकिंगली नाम, लिल बंटी से फटी थी गांड तभी 8 मिनट चिल्लाई ये राम, अब ये दूसरी बाजी है, जब भी तू आएगा हम लेने को राजी है, पूरी जिंदगी बनाना डिस तेरे 8 के लिए मेरे 6 मिनट काफी है। मचाएंगे 4 इसे लंड पे नचाएंगे और 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 माँ बाप के बारे में बोलेगा, इसे लग रहा ये मार नहीं खाएगा, और ड्रेस है तेरा मेरे पास, अगर मैं आऊंगा भाग नहीं पाएगा, एक और बार बोल उनके बारे, मामला रैप के पार ही जाएगा, बंटी तो पूरा है पुसी, पेपर भी दोगे ये फाड़ नहीं पाएगा, और मेरा गाना प्रमोट करने के लिए थैंक यू bitch. Okay, this diss track was brutal. Every jab that Krishna took at MUA would have hit hard. From dissing his girlfriend, his height, to making a claim that he doesn't live in Antop Hill anymore, and even taking shots at his views, this diss track was personal. The insults were crafted in a very intelligent way, and with each punchline, I found myself going, whoa, that was savage. The part where Krishna tells MUA to come out of the closet, that was hilarious. But I have to say, I didn't really enjoy Krishna's attempt at mimicry. It wasn't even close to sounding like MUA, and I felt like it was unnecessary. Also, I feel like Krishna didn't have any solid facts against MUA. There was nothing in the diss that genuinely exposed MUA or put him in the negative light. If I had to rate it, I would rate the insults as 10 on 10, but the facts were like a 5 on 10. The first half of the song was strong with some of Krishna's best insults and clever writing, but when it came to actual evidences, he didn't have much to work with. Still, my final verdict on it, this track gave Krishna an upper hand in the beef, and with that we move on to Machayenge 4 of MUA. To be honest, this track was really bad. Listening to this track for the second time, it felt the same way that I felt when I heard it for the first time. And what is it with MUA's third tracks? They always seem to fall flat. And why did MUA turn himself into Hindustani Bhau? The musicality was awful and there was a lot of talking, and overall it was just cringe. The part where MUA talks about Krishna's mom, it was especially unbearable. And yes, Krishna talking about MUA's girlfriend was not right either, but this just crossed the line. The second half of the track is somewhat bearable, but overall this track just makes my ears bleed. After this track, MUA started receiving a lot of hate, and eventually he took down the music video from YouTube. He became quite impulsive with his tweets and that infamous Instagram live that just made me feel bad for him. I think this loss hit MUA hard. That said, I'm glad that MUA is still making great music. MUA is undeniably a great rapper, and this beef just wasn't for him. Even now, MUA and Krishna take subtle shots at each other in their song, but I don't think that we will be seeing a second round of this beef anytime soon. Krishna gained the most out of this beef, and today he's considered as one of the best in the scene. Personally, I feel MUA should have taken more time before dropping Machayenge 4. There were a lot of smart ways he could have approached it, and Machayenge 4 of Krishna wasn't even his best track. MUA had a real chance to turn this around, but he let his anger get the best of him. And with that, we come to the end of the beef, and wow, that was intense. Let me know which beef revisit would you want me to cover next on my channel. And if you liked the video, like and share the video, and subscribe to my channel and hit the bell icon to get more updates from me. Until then, peace out.